Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, in this session, we'll continue our discussion with electrophilic substitution reactions of benzene. We have already discussed about the general mechanism of electrophilic substitution reactions in benzene, and we have already seen the halogenation, and in halogenation we have seen the substitution of chlorine and bromine on the benzene ring. So let's start. Second is the substitution of nitro group, and the substitution of nitro group on benzene ring is termed as nitration. What is a nitro group? It is basically, if you see here, it's basically NO2 group. Nitro group is NO2 group, and when it is in the form of an electrophile, then it is NO2 positive. This one is the general or overall basically reaction for the nitration process, in which you can see a benzene molecule, a nitric acid molecule converting into nitrobenzene and water in the presence of concentrated sulfuric acid. So let's start the mechanism of nitration. Step 1 is the formation of an electrophile. Steps are similar for all the substitution reactions. चाहे substituent कोई भी हो, the steps will remain same. Only the first step, basically the formation of electrophile, the mechanism of the formation of electrophile and the catalyst is different in all the reaction. Rest of the mechanism is same. In this step, an electrophile NO2 positive, that is electron deficient species, is formed by the heterolytic cleavage of bond. Electrophile generate करने के लिए जो bond breaking होगी वो heterolytic manner में होगी. The function of concentrated sulfuric acid is to increase the rate of reaction by increasing the concentration of electrophile, that is nitronium ion. Basically, sulfuric acid is behaving as a catalyst here, and it will increase the rate of reaction. It will make the reaction faster by increasing the concentration of an electrophile, that is nitro group or nitronium ion. The positive ion of nitrogen is termed as nitronium ion. So HNO3 plus H2SO4, तो यहाँ जो चीज़ generate हो रही है वो आपके पास electrophile NO2 positive, HSO4 negative and hydronium ion H3O positive. हाइड्रोजन सल्फेट साथ में बना था, HSO4 negative. Step 2, attack of electrophile. What is happening here? This is the benzene ring. Benzene ring है आपका, alternate double and single bond इसमें मौजूद है. अटैक करने आ रहा है आपका electrophile, which is NO2 positive in this case. So it will attack on the pi electrons of benzene ring. As a result, the pi bond, this pi bond, which I have highlighted with red, will break. So यहाँ पर कार्बोनियम या फिर अरेनियम आयन की फॉर्मेशन होगी जब आपके पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ये वाला कार्बन जो है वो एक बॉन्ड अपना बना लेगा इस इलेक्ट्रोफाइल NO2 के साथ, और यहाँ इसका जो हाइड्रोजन है वो ये रहा. यहाँ इस वक्त जो ये वाला कार्बन है जिसका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो पॉजिटिव हो जाएगा. रेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर इन देयर प्लेसेस. सो अब होगा क्या
कि इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए या रिंग स्टेबलाइज करने के लिए जो डबल बॉन्ड्स हैं वो शिफ्टिंग करेंगे. दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर ताकि ये पॉजिटिव चार्ज डिसअपेयर हो जाए. बट जब ये यहाँ मूव हो जाएगा बेंजीन रिंग, ये यहाँ NO2 और हाइड्रोजन अपनी पोजीशंस पर एज इट इज मौजूद हैं. ये डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है. पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पर आ गया है, ऑन दिस कार्बन, ये वाले कार्बन पर. तो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए. एज अ रिजल्ट अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव होकर आ जाएगा इस कार्बन पर. यहाँ डबल बॉन्ड्स आपके एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया. NO2 एंड हाइड्रोजन बोथ आर इन देयर प्लेसेस. NO2. सो ये जो है वो बेसिकली रेडियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर रिंग स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन. जब ये हाइड्रोजन इस सिस्टम को लीव करेगा बाय लीविंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम, तो आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड की अगेन फॉर्मेशन हो जाएगी और 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जो है वो बेंजीन रिंग में दोबारा से फॉर्म हो जाएंगे. और एज अ रिजल्ट जो स्टेबिलिटी है बेंजीन रिंग की वो वापस से रीगेन हो जाएगी. स्टेप 3 इज द लॉस ऑफ प्रोटॉन. सो हियर ये हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज बेंजीन रिंग है, अपना इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को प्रोवाइड करेगा और यहाँ से एस्केप कर जाएगा. अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बचा वो कुछ इस तरह है कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है विद ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स और उसके ऊपर एक NO2 नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, तो इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन. तो इस तरीके से आपके पास जो है वो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है. लास्ट स्टेप इज द रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट. स्टेप नंबर 4, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट हमने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया था. जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हम कर रहे थे उस टाइम पे ये HSO4 में कन्वर्ट हो गया था फ्रॉम H2SO4. HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर ही कन्वर्ट हो गया था. अब जो प्रोटॉन लूज हुआ है लास्ट स्टेप में, ये प्रोटॉन ये गेन करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा या इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और H2SO4 दोबारा से रीफॉर्म हो जाएगा. तो इस तरह से कैटलिस्ट आपका एट द एंड रिकवर हो जाएगा. नेक्स्ट आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन. सल्फोनेशन इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड और sulfonic acid functional group HSO3 positive in benzene ring is called sulfonation. It is basically the substitution of sulfonic acid with hydrogen. एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से लीव करेगा और उसकी प्लेस कौन ले लेगा? आपके पास सल्फोनिक एसिड ले लेगा. सो मैकेनिज्म इसका भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जैसा कि हमने नाइट्रेशन में देखा है या क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में हम देखते हुए आए हैं. सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला जहाँ आपका सल्फोनिक एसिड बनेगा वो स्टेप जो है वो डिफरेंट है. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. बेंजीन रिंग, सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिखा हुआ है फ्यूमिंग. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. और ये आपका जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर जनरेट हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ सल्फोनेशन और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका जो है वो मिलता है. ओवरऑल रिएक्शन इस तरह है. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 at room temperature reacts with benzene to produce benzene sulfonic acid. Fuming sulfuric acid contains sulfur trioxide which is sulfonating agent here. Fuming इसलिए कह रहे हैं इसको कि ये बेसिकली सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो
स्पीशीज फॉर्म में होती है। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिकली आप इसको डिज़ोल्व करते हैं। तो जब ये जिस भी कंटेनर में होती है, जब उस कंटेनर की लिड हटाई जाती है, रिमूव की जाती है, तो वहाँ से फ्यूम्स निकलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के। बेसिकली सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस आपको मालूम है ऊपर की तरफ उठती है लाइटर इन वेट होने की वजह से। तो वो जो गैस वहाँ से स्केप होती है, तो बेसिकली ऐसा लगता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड में से फ्यूम्स निकल रहे हैं। Concentrated sulfuric acid reacts with benzene at 120 degree centigrade to produce benzene sulfonic acid. Concentrated sulfuric acid react करता है बेंजीन के साथ at 120 डिग्री सेंटीग्रेड to produce benzene sulfonic acid. It means कि टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ जो आपने मेंटेन करनी है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड। Mechanism of sulfonation. Step 1. Formation of an electrophile. In fuming sulfuric acid, SO3 reacts with sulfuric acid to produce an electrophile that is SO3H positive. Fuming sulfuric acid में basically जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगी, यानी कि आपके सल्फोनिक एसिड को। लाइक दिस SO3 H2SO4 ये दोनों रिएक्ट करके SO3H पॉजिटिव फॉर्म करेंगे और साथ में HSO4 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड। एसिड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लीविंग अ प्रोटॉन। तो यहाँ जो H पॉजिटिव जो है वो इधर से आएगा। ये जो H पॉजिटिव आपको SO3H के साथ नज़र आ रहा है आफ्टर एरो, तो ये बेसिकली जो H पॉजिटिव है ये सल्फ्यूरिक एसिड ने जो है वो रिलीज़ करा है। और अब इसके पास HSO4 नेगेटिव बच गया बिकॉज ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ से ये लूज़ हो गया था। इसने प्रोटॉन जो है वो अपना जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो अपना इलेक्ट्रॉन लीव करके इस सिस्टम पर गया, इसलिए इस सिस्टम पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आपके पास जो अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है फर्स्ट स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल जाकर बस बेंजीनिंग पर अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, रिंग डीस्टेबलाइज हो जाएगा और फिर वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा और आपके पास जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। The electrophile attacks the aromatic ring to form an intermediate known as carboniamine or araniamine or sigma complex. अब अगेन वही कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग पर यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर और एक इंटरमीडिएट वो फॉर्म करेगा। एक इंटरमीडिएट स्पीशी मतलब जो कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट से पहले कहीं बन रही है, अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबलाइज करके फाइनल प्रोडक्ट देगी, तो उसको हम यहाँ पर कार्बोनियम आयन कॉल करते हैं। बेसिकली कार्बन पॉजिटिव आयन को कार्बोकैटायन कहते हैं। अभी हम स्पेसिफिकली हम बेंजीन को स्टडी कर रहे हैं, तो बेंजीन को हम अरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सो स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Okay, so electrophile is SO3H positive here. It will attack on the pi electron system of benzene ring. As a result, this bond will vanish, ये ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा SO3H। इलेक्ट्रोफाइल जब इस तरह से आके अटैक करता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो गेन कर चुका होता है तो इसलिए उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेंजीन पर आ जाता है बेसिकली। अब रिंग स्टेबलाइजेशन, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से डिसअपेयर करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। इसको मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ मूव हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा until or unless this hydrogen
leaves the system by leaving its electron to the system. Step 3, loss of proton. So loss of proton gives a substitution product, and the loss of proton results in the regeneration of double bond, which restores the stability of the ring and formation of the substitution product. Loss of proton is basically gives the final substitution product, जो कि आप substitution करवा रहे हैं यहाँ पर complete हो जाती है. सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाती है बेंजीन के ऊपर, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है विद इलेक्ट्रोफाइल, जो भी सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली था उससे वो रिप्लेस हो जाता है, और आपके पास जो है वो प्रोटॉन लूज होता है, वो आपके पास कैटलिस्ट की रिकवरी में हेल्प करता है, और जो स्टेबिलिटी है बेंजीन रिंग की वो रीगेन हो जाती है. सो हियर ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है इस वक्त, और ये कार्बन पॉजिटिव है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को प्रोवाइड करेगा और अपना बॉन्ड इससे ब्रेक कर लेगा. तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा एच पॉजिटिव की फॉर्म में, और यहाँ ये डबल बॉन्ड अगेन फॉर्म हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो गया बेंजीन रिंग पर से. तो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स मौजूद है अब इसमें, और SO3H यानी कि सल्फोनिक ग्रुप भी यहाँ सब्स्टिट्यूट हो चुका है, हाइड्रोजन की प्लेस पर आ चुका है. तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गई, स्टेबिलिटी भी रिंग की गेन हो गई. स्टेप नंबर 4, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट. सो वो जो प्रोटॉन लूज हुआ था वो आपके पास जो कैटलिस्ट यूज हुआ था, जो यूटिलाइज हो रहा था इनिशियल स्टेप में, वहाँ इसके साथ जाकर रिएक्ट कर कर इसको रिकवर करवा देगा, सल्फ्यूरिक एसिड में इसको कन्वर्ट करवा देगा. तो बेसिकली आपके पास इस मैनर में जो है वो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है होती है, या सल्फोनेशन आप करवाते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली. अगर आपको जनरल मैकेनिज्म समझ में आता है तो सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रोफाइल आपको दे दिया जाए, यू कैन ईजिली सब्स्टिट्यूट इट इन बेंजीन रिंग. आप उसके रिएक्शंस को स्टेप वाइज मैकेनिज्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो अभी तक जितने भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखी बेंजीन रिंग पर, उनमें जो चीज़ डिफरेंट थी वो आपने नोट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो फर्स्ट स्टेप था यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट वाला, जस्ट वही डिफ़र कर रहा था, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रोफाइल हर एक में डिफरेंट है, तो उसको जनरेट करवाने का तरीका भी डिफरेंट है. जिस तरीके से आपने क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ब्रोमीन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल लिए थे, और कैटलिस्ट हमने वहाँ पे फेरिक क्लोराइड एंड फेरिक ब्रोमाइड यूज़ किए थे फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली. इसी तरीके से नाइट्रेशन करवाने के लिए आप नाइट्रिक एसिड ले रहे थे फॉर नाइट्रेशन. ये चीज़ आपने याद रखनी कि अगर नाइट्रेशन करवानी है तो कौन सा आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए क्या चीज़ लेनी है, और उसको कैटलिस्ट कौन से उस कैटलिस्ट के साथ उसको रिएक्ट करवाना है. तो कैटलिस्ट जो वहाँ था वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड था. इसी तरीके से सल्फोनेशन में हमने क्या देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो मौजूद थे, और बेसिकली उनकी प्रेजेंस के अंदर जो है वो आपके पास सल्फोनिक ग्रुप की जनरेशन हो रही थी, और वो आपके पास सब्स्टिट्यूट हो रहा था ऑन बेंजीन रिंग. इनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अदर कुछ रिएक्शंस भी हैं which we will hopefully discuss in our next sessions. तो इंशाल्लाह फिर वो वहाँ डिस्कस करेंगे. तो if you have any question you can ask. कोई भी confusion है, कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, you can ask here.